Hello friends, welcome back to a new video, and in this video we're going to do Indian Express news analysis. So एक बहुत अच्छा article आया हुआ है in Indian Express. Basically it is talking about the student suicides which are happening in our country, and the harsh reality is the student suicides, they are increasing day by day. Recently कोटा में 3 students ने अपनी जान दे दी, and which was quite concerning. And article बहुत अच्छे से हमें बता रहा है कि why these things are happening, because there is a growing mismatch between the rising aspiration and also the growing opportunities. कहीं ना कहीं जो लोगों की aspirations हैं, जो हमारी कंट्री में opportunities हैं, वो उसको fulfill नहीं कर पा रहे हैं. उसके साथ साथ it is also highlighting the competitive environment which our education system is making in our country. We all are taught to compete in an environment where everyone is in a race. We are all competing to be first or second. एक बहुत important चीज़ में highlight किया गया है, our education system is not focusing कि how we can nurture the minds, how we can kind of हम निकलवा सकते हैं बेहतर ideas and innovations from the minds, rather than we're just teaching our students to be competitive. So these kind of environment I think is really impacting the psychological status of every student. और इसी का रिजल्ट है कि इतने ज़्यादा सुसाइड्स बढ़ गए हैं. और इस आर्टिकल में इतने अच्छे से बताया कि इन स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र जो कि टॉप पर है, ऑलमोस्ट 2020 में ऑलमोस्ट 2000 डेथ्स हुआ था. सिमिलरली मध्य प्रदेश जो सेकंड नंबर पे है, वहाँ पे 1300 के अराउंड डेथ हुआ. वी कैन थिंक कि कितने स्टूडेंट्स and these students have committed suicide, but the harsh reality is, what about those students which are facing the problem every day? And I think सिविल सर्विसेज में भी ये बहुत लोगों का होता है, बिकॉज वी आर काइंड ऑफ वी आर यूजिंग आर एसेंशियल ईयर्स ऑफ आर लाइफ इन दिस प्रिपरेशन. और उस टाइम पर बहुत सारे लोगों जब नहीं हो पाता है, सो दे आर रियली डिप्रेस्ड. सो इस चीज़ के लिए आई हैव लर्न समथिंग. मुझे अवध ओझा सर ने कहा, आई वॉज वॉचिंग अ पॉडकास्ट रिसेंटली, सो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोला कि यू शुड एट मैक्सिमम यू शुड गिव 2 अटेम्प्ट्स. फर्स्ट अटेम्प्ट में आप अपना 100% दीजिए, और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा एक और अटैम्प्ट देना चाहिए. अदरवाइज़ आपको फिर जो सिविल सर्विस का प्रिपरेशन है वो एज अ रिवीजन के फॉर्मेट में करना चाहिए. ऐसे नहीं कि आप बस उसी में ही लगे, वो 6 साल तक लोग दे रहे थे. दीज the age of 20s are one of the best years of our life, one of the most productive years in our life. So इसको किसी चीज़ में ऐसे नहीं लगा देना चाहिए, and depressed नहीं रहना चाहिए. If you are failing 2 attempts, then you should start your alternative careers, and you can choose a civil services as you can prepare it for side by side. So ऐसा आप कर सकते हैं. ऐसा इस आर्टिकल में भी हाईलाइट किया गया कि जो ये पनिशिंग एजुकेशन सिस्टम बन गया है, इट इज़ क्वाइट कंसर्निंग. सो इसको चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. सो another news which we are going to discuss today is in the Hindu newspapers, और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया हुआ है जिसमें बोला गया है कि in USA the scientists have produced the net gain in fusion energy. फ्यूजन एनर्जी क्या होता है, इस आर्टिकल में हम थोड़ा समझेंगे व्हाट इज़ फ्यूजन एनर्जी एंड व्हाई इट इज़ सो सिग्निफिकेंट, जो अभी हुआ है रिसेंटली. सो अगर हम फ्यूजन एनर्जी की बात करें, सो फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में आई एम श्योर सभी ने सुना होता है, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन. जिनको नहीं पता, वी नो कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी, जो कि वी आर एबल टू प्रेडिक्ट कि इट कैन हेल्प अस टू सॉल्व मेनी ऑफ द प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर. So nuclear fusion का मतलब है when 2 nuclei of certain elements are combining together to form a single larger nuclei, and in this process huge amount of energy is released, right? Nuclear bomb के बारे में हम सभी ने सुना है. जो USA ने during the World War II, USA dropped some atom bombs in the Hiroshima and Nagasaki, which are the states of Japan, और जिसने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन किया था. The thing is, वो न्यूक्लियर फ्यूजन पर बेस्ड था. अभी साइंटिस्ट अराउंड द वर्ल्ड दे आर ट्राइंग टू डेवलप न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी. न्यूक्लियर फ्यूजन में थोड़ा डिफरेंट होता है. फ्यूजन में अ न्यूक्लियस इज ब्रेकिंग इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियर, एंड वो स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं. उसमें भी बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है, बट न्यूक्लियर फ्यूजन में उससे 4 or 5 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है. सो we know that कि ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन का टेक्नोलॉजी है, ये फ्यूचर में बहुत हेल्प कर सकता है, और यही यूएसए में हुआ है. अभी तक न्यूक्लियर फ्यूजन तो बहुत ज़्यादा कॉमन है. इट इज़ यूज्ड इन मेनी ऑफ द थिंग्स. इन इंडिया ऑल्सो वी हैव मेनी न्यूक्लियर प्लांट्स जिसमें फ्यूजन टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है. फ्रांस की जो 70% इलेक्ट्रिसिटी नीड्स है वो न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी से होता है. बट अभी तक हम वी आर नॉट एबल टू
डू न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी प्रॉपरली ऑन अ वेरी लार्जर स्केल, सो दैट हम उसको इंडस्ट्रीज में और अपने डेली पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकें। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है बिकॉज किसी दो न्यूक्लियस को कंबाइन करने के लिए इट रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बिकॉज जो दो न्यूक्लियस होते हैं दे बोथ हैव न्यूक्लियस, वी ऑल नो दे आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और प्रोटॉन्स में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो दो न्यूक्लियस को कंबाइन करवाने दोनों में ही पॉजिटिव चार्ज है, तो दे बोथ रिपेल, और ये इसको कंबाइन करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है। सो आप देखोगे जो स्टार्स एंड सन्स हैं, देयर वी कैन फाइंड दिस थिंग हैपनिंग, बट वो उनके कोर में होता है, और उसका रीज़न क्या है, बिकॉज स्टार इज ह्यूज, और उसके जब बीच में न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी इसलिए ईजी हो पाता है बिकॉज देयर लॉट ऑफ प्रेशर विच इज देयर इन द कोर ऑफ द स्टार, इसीलिए वहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन पॉसिबल होता है। और प्रेशर के साथ हमें पता है टेम्परेचर भी बढ़ता है, हम सभी को पता है प्रेशर कुकर में बिकॉज ऑफ प्रेशर टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, एंड द डिश इज प्रिपेयर। द थिंग इज अर्थ पर इस चीज़ को करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर हमें न्यूक्लियर फ्यूजन करवाना है, दो न्यूक्लियस को कंबाइन करवाना है, सो वी नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकल। और हमने ट्राई किया है और वी वर डूइंग दिस थिंग, बट जो एनर्जी हम जितना लगा रहे थे उससे ज़्यादा हम उतना हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे। द थिंग इज अभी साइंटिस्ट ने यूएसए में ये करके दिखाया है, दिस इज रियली सीक्रेट। अगर उन्होंने बहुत थोड़ा सा किया, इट्स ओनली 0.72 द रिजल्ट विच दे हैव गेट, इसका मतलब इन्होंने 72% ही एनर्जी प्रोड्यूस कर पाए हैं। इनफैक्ट इट वॉज अगेन इन द एनर्जी, बट द थिंग इज फ्यूजन की टेक्नोलॉजी की अगर हम बात कर रहे हैं, वी कैन सी देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स अराउंड अस, देयर इज प्रॉब्लम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रूरल इलेक्ट्रिसिटी की हम बारे में बात करते हैं। वी ऑल्सो टॉक अबाउट एग्रीकल्चर सिस्टम्स को बेटर बनाना, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल लिविंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। आई थिंक लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विच वी आर फेसिंग राइट नाउ, द शॉर्टेज ऑफ एनर्जी, द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, इट्स अ क्लीनर as well as lot of amount of energy can be produced through it. So definitely it can become a future technology which can help us to solve many of the problems.